डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पे हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेबनिज थ्योरम हम लोगों ने शुरू किया। लेबनिज थ्योरम क्या होता है वो आपको मालूम है। इफ यू एंड v are any two differentiable functions of x, if u and v are any two differentiable functions of x, then nth derivative of uv, nth derivative of uv is equal to nth derivative of u into v plus n c1 into n minus 1th derivative of u into first derivative of v plus n c2 into n minus 2th derivative of u into second derivative of v and for that so on. And you can write plus n cr into n minus rth derivative of u into rth derivative of v plus that plus u into nth derivative of v. You can write where NCR is equal to factorial upon factorial r into factorial n minus r. ये आपको समझाया गया था कि लेबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट, और लेबनिज थ्योरम है क्या, उसमें कहा गया था इफ यू एंड v आर एनी टू डिफरेंशिएबल functions of x, any two differentiable functions of x, then nth derivative of product of u and v is equal to the nth derivative of u into v plus n c1 into n minus 1th derivative of u into first derivative of v plus n c2 into n minus 2th derivative of u into second derivative of v and so on. अगर इसको हम लेबनिज नोटेशन के रिस्पेक्ट में लिखने की कोशिश करें तो इसको ऐसे भी लिखते हैं u v n। सबसे से हम बता रहा है कि वी आर टेकिंग nth derivative of u and v and this is equal to u n into v. un means nth derivative of u into v plus n c1 into n minus 1th derivative of u into first derivative of v plus n c2 into n minus 2th derivative of u into second derivative of v and so on. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जहाँ पर आप ये करें कि NCR इक्वल्स टू फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल n माइनस r, तो ऑब्वियसली कि NC1 क्या होगा ये भी आप बता सकते हैं। NC1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 1 इनटू फैक्टोरियल n माइनस 1 and we can write factorial as n into factorial n minus 1 upon factorial 1 means 1 into factorial n minus 1. These two cancel out. Finally, it is n upon 1 that is equal to n. So nc1 means n. ऐसे ही nc2 that is factorial n upon factorial 2 into factorial n minus 2. Factorial n can be written as n minus 1 into factorial n minus 2 upon factorial 2 can be written as 2 into 1 into factorial n minus 2. These two cancel out. Finally, it is n into n minus 1 upon 2. And similarly, we can trace out what may be the nc3, what may be the nc4, nc5 and so on. फिर हम ये आपने कहा कि nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस u and v is equal to nth derivative of u multiplied by no derivative of v plus nc1
into n minus 1 derivative of u into first derivative of u plus nc2 into n minus 2 derivative of u into second derivative of u plus nc3 into n minus 3th derivative of u into third derivative of u and so on. You can write and so on. फिर हम अब इस पर बेस हम प्रॉब्लम शुरू करते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में थोड़ा सा आपको समझाया गया था। अब एक प्रॉब्लम कैसे करते हैं इसको देखा जाए। एक प्रॉब्लम आपके सामने लिखते हैं। if y equals a cos of log x plus b sin of log x, then prove that x square y2 plus x into y1 plus y is equal to 0, and x square yn plus 2 plus twice n plus 1 into x into yn plus 1 plus n square plus 1 into yn is equal to 0. And next problem is second problem. If x equals sin of log y upon a, then prove that 1 minus x square into y2 minus x into y1 minus a square y equals 0, and 1 minus x square into yn plus 2 minus twice n plus 1 into x into yn plus 1 minus n square plus a square into yn equals 0. ये दो प्रॉब्लम आपके सामने हमने लिखा है। पहले इन पर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। देखेंगे आपसे कहा गया है कि इफ y इक्वल्स जो दिया गया है वो लिखा हुआ a कोसाइन ऑफ log x प्लस b sin of log x. a cos log x plus b sin log x, that is function of x. You may say this is the function of x. Y is expressed in terms of x, means y is a function of x. If y is a function of x, then prove that x square y2 plus x y1 plus y is equal to 0. And after that, with the help of this result, prove that x square yn plus 2 plus twice n plus 1 into x into yn plus 1 plus n square plus 1 into yn is equal to 0. And second problem जब आप देखेंगे लिखा है x equals sin log y upon a. sin के साथ एंगल की जगह पे लिखा हुआ log y upon a, जबकि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें y इन टर्म्स ऑफ x से, तो पहले क्वेश्चन में देखेंगे तो वो y इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ हम इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे y इन टर्म्स ऑफ x नहीं दिया। इसके अंदर जो प्रॉब्लम आपके सामने बेसिकली रेंज किए जाते हैं उसमें दो संभावनाएं हो सकती हैं कि या तो y इन टर्म्स ऑफ x दिया गया है, और दूसरी संभावना ये हो सकती है कि आपको y इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर y इन टर्म्स ऑफ x दिया है तो आप क्वेश्चन सीधे स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगर y इन टर्म्स ऑफ x नहीं दिया गया है
तो उस कंडीशन में फर्स्ट ऑफ ऑल y इन टर्म्स ऑफ x आप फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए प्रयास करते हैं पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। इस पर आते हैं सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले लिख रहे हैं गिवन दैट, जो आपको समझा रहा है गिवन दैट y इक्वल्स a cos ऑफ log x प्लस b sin ऑफ log x। और आपको समझाया जाए कि सबसे पहले इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हमें जो चाहिए हमेशा y इन टर्म्स ऑफ x चाहिए। ये नोटेड शुड बी नोटेड। तो y इन टर्म्स ऑफ x यहाँ पे दिया गया है नो प्रॉब्लम। अब चूंकि यहाँ देखेंगे y है, y का फर्स्ट डेरिवेटिव है, y का सेकंड डेरिवेटिव, तो प्रॉब्लम इंडिकेट कर रहा है कि हमको y के सेकंड डेरिवेटिव तक अप्रोच करना है। y का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए differentiating equation 1 with respect to x, we get x के रिस्पेक्ट में जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा dy by dx को जब लेबनीज नोटेशन में आप लिखेंगे इसे डिनोट करेंगे y is equal to a cos of log x पहले आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव करिए इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो cos का डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा माइनस sin ऑफ log x, फिर log x का डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस b sin ऑफ log x है, पहले आउटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा cos log of x, इनर फंक्शन log से log x का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन x। या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको हम लिख सकते हैं x से मल्टीप्लाई करें तो x y1। ध्यान रखिए जब एक बार y को y इन टर्म्स ऑफ x हमको मिल गया होता है तो जब फर्स्ट टाइम उसे डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट करने पर ये राइट हैंड साइड में फ्रैक्शन बनने लगे तो ये एलसीएम ले लेते हैं। तो ये एलसीएम जो फ्रैक्शन बना 1 अपॉन x को मिला के फ्रैक्शन बना रहा है। तो जब एलसीएम लेंगे तो x और x का एलसीएम x होगा, उसी x से पूरे में हम लेफ्ट और राइट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ गया xy, अब यहाँ पर माइनस a sin ऑफ log ऑफ x प्लस b cos ऑफ log ऑफ x। अब इतना करने के बाद देखते हैं क्या राइट हैंड साइड को हम y में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो y में कन्वर्ट तभी होगा जब राइट हैंड साइड में हमको a cos ऑफ log x प्लस b sin ऑफ log x दिखे, जबकि यहाँ पर वो चीज हमें नहीं दिख रहा। अगर यहाँ आता a cos ऑफ log x प्लस b sin ऑफ log x तो उसकी जगह पर हम इजीली y लिख सकते थे। इसका मतलब राइट हैंड साइड को अभी हम y में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक बार फिर से डिफरेंशिएट करें, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2 का डिफरेंशिएट या अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 with respect to x। इक्वेशन 2 को फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट फर्स्ट और सेकंड मान के डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन x डेरिवेटिव ऑफ सेकंड हो गया y प्लस सेकंड फंक्शन y1 डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज y is equal to minus a। sin का डेरिवेटिव आउटर का डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा cos, ये रहेगा cos ऑफ log x, फिर log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस b लिख दिया
cos का डेरिवेटिव होगा ऑल्टरनेटिव माइनस साइन प्लस माइनस माइनस कर लिया है और ये जगह साइन ऑफ log x। तो log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1/x। या फिर देखेंगे राइट हैंड साइड में फ्रैक्शन बना है। जब फ्रैक्शन बन गया तो आपको समझाया गया है एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या बनेगा x। अब उस x से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x² 2 प्लस x इंटू y1 इज इक्वल टू माइनस a cos ऑफ log x प्लस b sin ऑफ log ऑफ x। इतना माइनस भी काम हो। आपको समझाया गया था कि फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करके सिंपलीफाई करने के बाद हम देखते हैं क्या राइट हैंड साइड को y में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आंसर नो में मिला, यस में मिला तो कन्वर्ट कर दीजिए। यदि आंसर नो में मिल रहा है तो उस कंडीशन में हम इक्वेशन 2 को दोबारा डिफरेंशिएट करके फिर यही प्रोसेसिंग करेंगे, सेम प्रोसेसिंग। यदि फ्रैक्शन बनेगा तो एलसीएम लेकर के उस एलसीएम से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये फ्रैक्शन खत्म हो। दूसरा, फिर देखेंगे क्या राइट हैंड साइड को हम y में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में आया a कोसाइन ऑफ log x प्लस b साइन ऑफ log x। और आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में a कोसाइन ऑफ log x प्लस b साइन ऑफ log x इज इक्वल टू y। यहाँ लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू माइनस y। कहाँ से आया का बाई इक्वेशन 1। अब इसको लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लेंगे तो जाएगा x² 2 प्लस x इंटू y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। ये आ गया। इसको कहा गया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3। तो आप देखिए जो इक्वेशन 3 मिला हुआ ये भी डिमांड किया गया था कि प्रूव दैट x² 2 प्लस xy1 प्लस y इक्वल टू 0। तो एक रिजल्ट फर्स्ट प्रूफ आ गया आपका। अब कह सकते हैं हेंस प्रूफ फर्स्ट। सेकंड पार्ट प्रूफ करने के लिए इसका आप लीनियर डेरिवेटिव लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव दैट टेकिंग या differentiating equation 3 n times with the help of Leibniz। Leibniz theorem we get थोड़ा सा इजीली समझिएगा। आपने कहा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 n टाइम्स। इसका मतलब हुआ कि इक्वेशन 3 में जितने भी टर्म्स बने उनको n टाइम एक बार ऐसे लिख देते हैं n डेरिवेटिव ऑफ, अगली बार ऐसा नहीं लिखेंगे आपके समझने के लिए, n डेरिवेटिव ऑफ x² 5 प्लस n डेरिवेटिव ऑफ x y प्लस n डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 0। मतलब इसके हर एक टर्म का क्या n डेरिवेटिव ले लिया। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। चूंकि यहाँ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है तो इस प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन पर भी तो लेबनिज रूल अप्लाई करते हैं। इसमें से एक को u और दूसरे को v मानेंगे। आपको यह भी समझाया गया है कि मैक्सिमम केसेस में हम अलजेब्राइक फंक्शन को भी मानेंगे। इसका मतलब u कौन हुआ y2। लेबनिज रूल लगाएंगे तो पहले आएगा y2 का लीनियर डेरिवेटिव। y2 का मतलब वो y ट्वाइस टाइम ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड है। जब इसे n टाइम और डिफरेंशिएट करेंगे और मतलब हो गया प्लस कितने टाइम्स n टाइम 2 टाइम पहले से डिफरेंस टोटल क्या होगा yn + 2 इनटू v
v की जगह है एक्स स्क्वायर प्लस एन c1 एन c1 मतलब क्या हो जाता है एन, आपको याद आता है। फिर y2 का n माइनस 1 डेरिवेटिव, तो y2 का n माइनस 1 2 प्लस n माइनस 1 इंटू v का फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज 2x प्लस nc2 फार्मूला याद रखिए nc2 का मतलब है n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 मींस 2। अब y2 का n माइनस 2 डेरिवेटिव, तो y2 का कितनी बार और मतलब प्लस हाउ मेनी टाइम्स n माइनस 2 टाइम्स इनटू x स्क्वायर का सेकंड x स्क्वायर को फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो 2x है, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो अब क्या आएगा 2, चूंकि x स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव 2x है और सेकंड डेरिवेटिव 2 मींस कांस्टेंट आ गया, तो इसका अगर अगला स्टेप लिखेंगे तो इसका थर्ड डेरिवेटिव आएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0, इसलिए अब थर्ड स्टेप अगला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, ये नहीं कंप्लीट होगा। प्लस लिखा होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, जैसा भी होगा वैसा लिखेंगे। यहाँ भी अब हम लेवरेज रूल लगाएंगे, x को v और y1 को u मानेंगे, आपको समझा है। तो y1 को u मानेंगे तो लेवरेज का था कि पहले y1 का nth डेरिवेटिव, y1 का nth डेरिवेटिव 1 प्लस n इनटू v का मतलब हो गया x प्लस nc1 फार्मूला आपको याद रखिएगा, y1 का n माइनस 1 है, तो y1 को और हाउ मेनी टाइम्स n माइनस 1 टाइम्स देखिए इनटू v का फर्स्ट डेरिवेटिव, तो x का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा, चूंकि फिर वजह दिया जा रहा है कि x का फर्स्ट डेरिवेटिव ही कांस्टेंट हो गया। इसका अगला स्टेप जब देखेंगे तो इसी का नेक्स्ट डेरिवेटिव आएगा, तो कांस्टेंट का नेक्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, इसका आगे लिखने की आवश्यकता नहीं। यहाँ देखिएगा प्रोडक्ट का फंक्शन नहीं है, हमें सिर्फ y का nth डेरिवेटिव लिखना है, क्योंकि yn इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, यहाँ देखिएगा x स्क्वायर yn प्लस पूरे को जब सिंपलीफाई करें ध्यान से देखिए yn प्लस 2 पहले कहाँ आया है, पूरे इक्वेशन पे गौर करेंगे, सिर्फ एक जगह yn प्लस 2 मिलेगा, बोल दिया तो क्या x स्क्वायर yn प्लस यहाँ देखिएगा इसको भी हम लिख दे रहे हैं एक बार फिर से 2 x, अब एडजस्टमेंट नहीं दे रहे y 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये क्या करेगा n प्लस 1, इस 2 से यह 2 कैंसिल हो गया, फिर क्या n इनटू n माइनस 1 इनटू 2 से क्योंकि यह 2 भी कैंसिल हो गया तो बचा क्या y n, देख लीजिए ध्यान से, प्लस यहाँ से प्लस x इनटू yn प्लस प्लस इनटू प्लस प्लस होगा, प्लस लिखिए, इस 1 से यह 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या n इनटू yn प्लस yn इज इक्वल टू 0। अब इसको आप सिंपलीफाई करके लाइन अप करिए, तो पहले लिखा था x स्क्वायर इनटू yn प्लस, इसका एडजस्टमेंट इसी के साथ कोई नहीं, yn प्लस 1 यहाँ भी है, yn प्लस 1 यहाँ भी है, यहाँ yn प्लस 1 का कोएफिशिएंट है 2nx प्लस 2nx, देखिए ध्यान से, यहाँ yn प्लस 1 का कोएफिशिएंट है प्लस x, ये प्लस x दोनों में देखेंगे प्लस भी कॉमन हो जाएगा, x भी कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2n प्लस 1 इंटू x, ये मैं लिखने जा रहा हूँ, लिखा प्लस 2n प्लस 1 इंटू x इंटू yn प्लस 1, समझ में आया सबको एक साथ। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ भी y है,
यहाँ भी yn है, यहाँ भी yn के कोफिशिएंट्स को जब हम एक साथ लिखेंगे तो क्या आएगा? तो yn के कोफिशिएंट्स को एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ yn का कोफिशिएंट है, देखेंगे प्लस n इंटू n माइनस 1। यहाँ yn का कोफिशिएंट है प्लस n, यहाँ yn का कोफिशिएंट है प्लस 1। ये हो जाएगा कुल मिला के n स्क्वायर माइनस n प्लस n प्लस 1। ये कैंसिल हो गया। फाइनली जब है n स्क्वायर प्लस 1 तो वो लिख देते हैं प्लस n स्क्वायर प्लस 1 किसका कोफिशिएंट? yn का इज इक्वल टू 0। देखेंगे शायद आपको ये भी प्रूव करना था कि x स्क्वायर yn प्लस 2 n प्लस 1 x इंटू yn प्लस 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 इंटू yn इज इक्वल टू 0। तो बात कर सकते हैं हेंस प्रूव। और ये कौन सा पार्ट था? सेकेंड पार्ट। तो दोनों पार्ट आपने प्रूव कर लिया। एक सिंपल प्रॉब्लम दिया था आपने जिसमें y इन टर्म्स ऑफ x दिया गया था, लेकिन अगर दूसरा प्रॉब्लम हम लोग कंसीडर करते हैं, सेकेंड वाला प्रॉब्लम जिसमें y इन टर्म्स ऑफ x नहीं, तो उसको कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम y को इन टर्म्स ऑफ x ले आए। जब y को इन टर्म्स ऑफ x आप ला लेंगे तो जैसे अभी इस तरह प्रॉब्लम किया है वैसे ही पुनः हम प्रॉब्लम करने लगेंगे। तो देखा जाए, ये सेकंड प्रॉब्लम दिया गिवन दैट x इक्वल्स साइन ऑफ log ऑफ y अपॉन, ये आपको अवेलेबल कराएगा। लेकिन यहाँ x इक्वल्स साइन ऑफ y दिया बस, तो x इक्वल्स फंक्शन ऑफ y, बट हमें चाहिए y इक्वल्स फंक्शन ऑफ x, y इन टर्म्स ऑफ x। ये देखिए yn प्लस 2 लिखा हुआ, yn प्लस 1 लिखा हुआ, yn लिखा हुआ, y1 लिखा हुआ। y1 में हमको समझ में आना चाहिए कि y1 मींस y का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और y का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तभी जब y इन टर्म्स ऑफ x आपके पास हो, और यहाँ y इन टर्म्स ऑफ x मिलेगा कैसे, ये तो हमको देखना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, साइन को लेफ्ट में ले जाते हैं। जब साइन को लेफ्ट में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा log y अपॉन, अभी भी y इन टर्म्स ऑफ x में, तो इसको लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ y इक्वल टू a इनटू साइन इनवर्स x। इतना अभी भी y लेफ्ट में है, x राइट में है, बट कंप्लीटली y इन टर्म्स ऑफ x नहीं है, क्योंकि y पर यह लॉगरिथमिक ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है। इस ऑपरेटर को यहाँ से हटाएंगे तो y इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम e टू द पावर a साइन इनवर्स x। इसको कर दिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर। अब देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ y है, और राइट हैंड साइड में जरूर e टू द पावर a साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, लेकिन हम समझेंगे कि कुल मिलाकर लिखा हुआ y इज फंक्शन ऑफ x। अब जब y फंक्शन ऑफ x हो गया तो हमें क्या क्या चाहिए? y चाहिए, y का फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, y का सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, और y का n प्लस 2s डेरिवेटिव भी हमें चाहिए। तो चाहिए तो जरा से उस चाहना को कंप्लीट करने के लिए हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x, with respect to x। इक्वेशन 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस है, तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा y, y को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx आएगा, dy by dx इक्वल हो गया y e टू द पावर a sin इनवर्स x। पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे,
तो आपको भली बात पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो e टू द पावर a sin इनवर्स x का डेरिवेटिव का e टू द पावर a sin इनवर्स x। अब पावर में जो लिखा है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। पावर में तो a इनटू लिखा हुआ है, a लिख दिया, इनटू क्या है sin इनवर्स x। sin इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू हो जाएगा a इंटू e टू द पावर a sin इनवर्स x। आपको समझाया गया था कि अगर राइट हैंड साइड में फ्रैक्शन बनता है तो सबसे पहला काम होता है कि उस फ्रैक्शन को हटाया जाए। तो उस फ्रैक्शन को हटाना, राइट हैंड साइड में फ्रैक्शन क्या बना 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो फ्रैक्शन क्या था रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो रूट 1 माइनस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि डिनोमिनेटर से फ्रैक्शन हट जाए। दूसरा ये भी कहा गया था, आपको सचेत किया गया था कि क्या हम राइट हैंड साइड को y में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली इक्वेशन 1 की हेल्प लें तो यहाँ लिखा हुआ है e टू द पावर a sin इनवर्स x इज इक्वल टू द y। तो e टू द पावर a sin इनवर्स x इक्वल्स अगर y है तो यहाँ भी जो e टू द पावर a sin इनवर्स x लिख रहा है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं। तो जगह अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू y1 इज इक्वल टू a y। ये कहाँ से आया वो बता दीजिए विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अब अगर इसका हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो स्क्वायर रूट से भी हमको थोड़ा सा आसान हो जाएगा और डिफरेंशिएशन करने में भी आसान हो जाएगा। तो क्या इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड का, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर और y1 का स्क्वायर करेंगे तो y1 स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू a स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x we get। इसलिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो जगह फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो पहले आउटर तो हो जाएगा 2y1, y1 को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा y2 आउटर। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन y1 स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया तो सिर्फ क्या बचेगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, तो ये क्या बचेगा -2x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में a स्क्वायर का कांस्टेंट है, पहले y स्क्वायर का पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2y, फिर y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx आएगा और उसको डिनोट किससे कर दिया y1 से। थोड़ा सा सिंपलीफाई किया गया, देखेंगे 2y1 इसमें भी है 2y1 इसमें भी है 2y1 इसमें भी, तो ये पूरा हम कैंसिल कर रहे हैं। तो भी करें y1 का एक पावर है 2y1 बचा क्या 1 माइनस x स्क्वायर इनटू y प्लस माइनस माइनस हो जाएगा x इनटू y इज इक्वल टू a स्क्वायर y। राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करें तो ये जगह 1 माइनस x स्क्वायर इनटू y2 माइनस x इनटू y1 माइनस a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 और ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 2। देखिएगा संभवतः आपको यही कहा गया है कि 1 माइनस x स्क्वायर इनटू y2 माइनस x इनटू y1 माइनस a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट आपका एक तरीके से आ गया था हेंस टू फर्स्ट रिजल्ट। तो फर्स्ट रिजल्ट आपका टू। अब आते हैं नेक्स्ट डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 n times with the help of by using
Leibniz theorem. क्वेश्चन नंबर 2 को n टाइम डिफरेंशिएट किया था विद द हेल्प ऑफ लेibniz थ्योरम। तो n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हर एक का n डेरिवेटिव आएगा। एक बार फिर से लिख देते हैं आपके समझने के लिए। n डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू y तो जाएगा माइनस n डेरिवेटिव ऑफ x इनटू y माइनस a स्क्वायर into n डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू 0। लेibniz रूल लगाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अलजेब्राइक फंक्शन y के डेरिवेटिव। आपसे कहा गया है अलजेब्राइक इक्वेशन को हम v मानते हैं। तो अलजेब्राइक को जब आप v मानेंगे तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है तो अलजेब्राइक को v मानेंगे तो n डेरिवेटिव ऑफ u भी करेंगे तो n डेरिवेटिव ऑफ u ये का मतलब हो गया y n प्लस इंटू v का मतलब हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस n c1 का मतलब हो गया n इंटू y2 का n माइनस 1th डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा y n प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया माइनस 2x। ओके फिर y प्लस nc2 मीन्स n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 दैट इज 2 y2 का n माइनस 2th डेरिवेटिव लेंगे तो y2 का n माइनस 2th डेरिवेटिव हो जाएगा yn इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस 2x प्लस सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस 2 इतना माइनस n डेरिवेटिव ऑफ x y में यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन बन रहा है तो एक को फर्स्ट और दूसरे को सेकंड मानेंगे मतलब एक को u और दूसरे को v मानेंगे। यहाँ भी जब रूल अप्लाई करेंगे u दैट इज x v into y1 का n डेरिवेटिव जिसे u का है तो यह आ जाएगा y n प्लस n c1 मतलब हो गया n into y1 का n माइनस 1 डेरिवेटिव हो जाएगा y into x का फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा y कितना कांस्टेंट हो गया तो जोड़ देंगे माइनस a स्क्वायर y का n डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा yn इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर हो लीजिए कि क्या दिक्कत आपको आ रही है। पहले आपने कहा एक को u मान लेते हैं दूसरे को v मान लेते हैं। v किसको माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर u किसको माना y। अब अगर आपको लेibniz रूल याद है तो पहले y2 का क्या लेते हैं n डेरिवेटिव y2 को 2 को n टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 का मतलब है कि y ऑलरेडी ट्वाइस टाइम डिफरेंशिएटेड है। जब इसे n टाइम और डिफरेंशिएट करेंगे और का मतलब हो गया प्लस तो 2 प्लस कितनी बार n टाइम्स हो गया y n प्लस 2। ऐसे ही जब y2 का n माइनस 1 डेरिवेटिव लेंगे तो y2 से तो इतना हम समझ ही रहे हैं कि y ऑलरेडी ट्वाइस टाइम डिफरेंशिएटेड है। लेकिन जब इसे n माइनस 1 टाइम और मतलब प्लस तो 2 में जब हम n माइनस 1 और मतलब प्लस n माइनस 1 ऐड करेंगे तो n तो ऐसे और 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 तो जाएगा y n प्लस 1। ये देखिएगा ऐसे ही y2 का जब n माइनस 2 डेरिवेटिव लेंगे 2 पहले से है कौन सा डेरिवेटिव और लेने जा रहे हैं n माइनस 2 तो और के लिए प्लस n माइनस 2 इस 2 से n 2 कैंसिल हो जाएगा फाइनली क्या बचेगा यानी इस कारण लिखेंगे लिखा हुआ 1। ये भी मानो v का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस 2x आएगा और v के फर्स्ट डेरिवेटिव का जो डेरिवेटिव होगा वो सेकंड डेरिवेटिव कहलाएगा और क्या आएगा माइनस 2।
-2 को एक बार और डिफरेंशिएट करें तो थर्ड डेरिवेटिव आएगा, लेकिन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट होने का। इसलिए इस ब्लॉक को कंप्लीट कर दिया गया, कोष्टक को बंद कर दिया गया ताकि इससे आगे आपको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म में किया गया, लास्ट टर्म में किया। अब जरा से इनको सिंपलीफाई किया जाए, इसे लिखते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस, ये लिख दिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 2 एन एक्स इंटू वाई एन प्लस 1, इतना। इस 2 से या 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू वाई एन, इतना आ गया। 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे आ जाएगा माइनस एक्स इंटू वाई एन प्लस 1, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये होगा माइनस एन इंटू वाई एन, फिर माइनस ए स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0, ये आपने लिखा। अब इनको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए, सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2, यहाँ भी वाई एन प्लस 1 है, यहाँ भी वाई एन प्लस 1, यहाँ वाई एन प्लस 1 का कोएफिशिएंट है माइनस 2 एन एक्स, और यहाँ वाई एन प्लस 1 का कोएफिशिएंट है माइनस एक्स, दोनों में माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2n प्लस 1 इंटू एक्स। देखिएगा ये लिखा है माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स, कोएफिशिएंट किसके थे yn प्लस 1, इतना आ गया। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो अब देखिए किसको आपको समराइज करना, चाहे देखिए और बचा yn यहाँ भी है, yn यहाँ भी है, yn यहाँ भी, yn का कोएफिशिएंट देखेंगे तो माइनस n इंटू n माइनस 1, यहाँ yn का कोएफिशिएंट माइनस n है और यहाँ yn का कोएफिशिएंट माइनस a स्क्वायर। सिंपलीफाई करेंगे तो माइनस n से n में गुणा करेंगे तो माइनस स्क्वायर, माइनस n से माइनस 1 में गुणा करेंगे तो प्लस n माइनस n माइनस a स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल। फाइनली अगर इन दोनों में माइनस कॉमन लेते हैं तो n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिखा माइनस n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, किसके कोएफिशिएंट थे yn थे, तो ये दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा आपको लाना क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस ट्वाइस n प्लस 1 इंटू एक्स yn प्लस 1 माइनस n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू yn इक्वल टू 0। तो अब आप कह सकते हैं कि सेकंड रिजल्ट भी जो हमें चाहिए था वह भी हमारा रिजल्ट आ चुका है। तो अब आपने प्रॉब्लम लेकर के देखा, दो तरीके की प्रॉब्लम आपने कंसीडर की। ये वो प्रॉब्लम जो सिंपल प्रॉब्लम जिसे हम लोग कह सकते हैं, जिसमें y इन टर्म्स ऑफ x सिंपली आपको दिया गया था और आपको प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देना था। दूसरा वो प्रॉब्लम जिसमें y इन टर्म्स ऑफ x नहीं दिया गया था, पहले आपको दिए गए प्रॉब्लम से y इन टर्म्स ऑफ x बनाना पड़ा और उस पर प्रॉब्लम इन सिमिलर मैनर हम लोगों ने कर दिया। नेक्स्ट टर्म पे फिर इसी तरीके की प्रॉब्लम को हम लोग कंसीडर करेंगे, जो प्रॉब्लम और करेंगे ताकि और अभ्यास हो जाए। तो नेक्स्ट टर्म की बात है, नेक्स्ट टर्म पे हम लोग। थैंक्स।